Hello everyone. Welcome again to live session of Manula classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 3rd November 2023. So in today's newspaper, I will discuss the important news from your examination point of view. So now we come to the first news. Kejriwal defies summons by ED, goes for roadshow. So as all of you may be aware that Mr. Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, was given summon by the Enforcement Directorate, okay, to appear before it on 2nd of November. ठीक है, लेकिन उन्होंने उस समन के रेफरेंस में वो ईडी के ऑफिस नहीं गए एंड ही कॉल्ड द समन्स एज फिशिंग एंड रोविंग एक्साइज एंड अनसस्टेनेबल इन लॉ. उन्होंने ऐसा माना है कि जो समन को दिया गया है इट इज नॉट लीगली करेक्ट. ठीक है. नाउ वी सी whether this it is unsustainable in law. We'll see it from the legal point of view. Basically, ED, Enforcement Directorate, is an agency which investigate matter regarding the corruption or the cases of money laundering. And generally, every investigative agency, obviously this is a cognizable offense, means money laundering or corruptions both are cognizable offense. Cognizable offenses कौन से होते हैं? In which police can arrest a person without warrant. अब here word police means other investigative agency as well. Now, so ये cognizable offenses हैं. तो अब अगर ED को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कुछ evidences हैं, the ED has given someone, ठीक है, and as per law ED has this power that it can give someone to any persons alleged to be involved in any criminal cases or in any corruption cases or the corrupt cases of money laundering. Now we come to next news. मोइत्रा अदर अपोजिशन एमपी वॉक आउट ऑफ एथिक्स कमेटी. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, महुआ मोइत्रा शी इज एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस पार्टी. ठीक है. एंड शी इज accused of giving her password to a businessman and she asked question on the behalf of businessman in the parliament as per the allegation. Subsequently इनको बुलाया गया था कमेटी के सामने, एथिक्स कमेटी के सामने. शी वाज आस्क्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर द एथिक्स कमेटी, लेकिन इन्होंने उस एथिक्स कमेटी को बायकॉट कर दिया. अब यहाँ पर देखिए दो कमेटी हैं, और एक तो एथिक्स कमेटी होती है और एक होती है डिसिप्लिनरी कमेटी. ठीक है. तो एथिक्स कमेटी का मतलब यहाँ पर यह है कि बिकॉज शी आस्क्ड द as per the allegation, because she asked the question after receiving the money from a particular businessman, so it is considered this act of this Mahua Moitra MP is considered as against ethics. So she was required to be present before ethics committee. लेकिन इन्होंने इसका बायकॉट किया, और बायकॉट की ग्राउंड ये थी कि she was being asked some personal questions. Personal questions in the sense that what is the relationship between her and that businessman Meera Nandani. So on this issue she left this office of the ethics committee. Now we come to next news. Supreme Court seek data on donation through the electoral bond, reserve verdict on scheme. ये important news है इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाली. तो यहाँ पर दिस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को चैलेंज किया गया था. अब पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है. तो बेसिकली जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये एक ट्रस्ट या सोसाइटी की तरह होती हैं, मींस एनजीओ, मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं.
एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं इनके लोग और फिर देश की भलाई के लिए कानून बनाते हैं। तो अब से पहले क्या था कि इनको जो मनी दी जाती थी, जो डोनेशन दी जाती थी, दैट वाज देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी इन दैट डोनेशंस। तो कैश फ्लो बहुत ज्यादा होता था और मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी। लेकिन अभी क्या किया सरकार ने, एक ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। और पहला पॉइंट ये है, दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एज अ मनी बिल। मनी बिल, ठीक है। अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जब ये मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस की गई, और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें अगर कोई पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता है तो वो एसबीआई के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, ठीक है, इन द डिनोमिनेशन ऑफ 10,000, 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वो जो पर्सन को खरीदेगा उस पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, उस पर्सन की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और ये पर्सन इन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद कर उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं जिसको कि उनको दान देना चाहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंसर्न ये है कि पहला कंसर्न तो ये है कि इसको मनी बिल की तरह पास किया गया, दूसरा कंसर्न ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया विल नॉट बी एबल टू नो दैट हु हैज गिवन हाउ मच मनी टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर वर्डिक्ट तो सुना दिया, मतलब वर्डिक्ट तो दे दिया है, लेकिन वो रिजर्व कर दिया है, तो दैट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड। एक एप्रीहेंशन ऑनरेबल कोर्ट का ये है, दिस शुड नॉट बिकम a legitimization of the kickback and quid pro quo between power center and the people who are benefactors of that power. The purpose of business is to carry out the business and not to donate to the political party. ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना कोई बुरी बात नहीं है, एंड इट इज आल्सो नॉट अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये क्विड प्रो क्यों नहीं होना चाहिए। अब ये क्विड प्रो क्यों का मतलब क्या है, तो क्विड प्रो क्यों है, एक हमारी एक लीगल मैगजीम है, इट इज अ लीगल मैगजीम, क्विड प्रो क्यों। और ये लीगल मैगजीम क्या कहता है, इस लीगल मैगजीम के अनुसार इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब है कि अगर हम कुछ किसी को देते हैं उसके बदले हम कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट का रेफरेंस ये है कि अगर कोई बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है या देते हैं, तो वो उनका पर्पज देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए। किसी सही पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देना इट इज नॉट इनकरेक्ट। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को पैसे इसलिए देते हैं कि कल को अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो उससे हम कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट लेंगे, तो ये एक बिजनेस है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, और जो जो भी सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी वो फ्रीली काम नहीं कर पाएगी। दैट वुड वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ दैट बिजनेसमैन हु हैज गिवन मनी और डोनेटेड मनी टू दैट पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि बिजनेसमैन का काम केवल बिजनेस करना होता है और उनका काम डोनेशन देना नहीं है। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि इसको मनी बिल की तरह कैसे पास किया गया, तो अब हम समझाते हैं आपको मनी बिल थोड़ा सा। देखिएगा, देयर इज अ सेक्शन आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो मनी बिल को डिफाइन करता है। सिमिलरली आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मनी बिल जो है 199 डिफाइन करता है स्टेट लेजिस्लेचर के रेफरेंस में मनी बिल को, और 110 जो डिफाइन करता है वो पार्लियामेंट के रेफरेंस में मनी बिल को डिफाइन करता है। अब पॉइंट क्या है यहाँ, तो मनी बिल क्या है, तो जनरली इफ यू विल रीड द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन आर्टिकल 110, वो कहता है कि इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, रिडक्शन एनी टैक्स, ठीक है,
और जितने भी हमारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, दीज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई ये डिस्प्यूट होता है कि वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, देन हु डिसाइड दिस डिस्प्यूट। तो यहाँ पर आर्टिकल 110 में ये मेंशन किया गया है दैट इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट दैट वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के स्पीकर इसको डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर सरकार ने इसको एज ए मनी बिल पास किया, तो इसके मनी बिल, जब हम किसी बिल को एज ए मनी बिल पास करते हैं तो देन इट गिव्स सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू द लोकसभा। ठीक है, तो ये लोकसभा को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे देती है। अब पहली पावर क्या है कि मनी बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। तो पहला बात ये है, जनरल रूल ये है कि किसी भी बिल को आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मनी बिल के रेफरेंस में ये लॉ है कि मनी बिल विल ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हमेशा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंटली अपनी पॉकेट वीटो की पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि मनी बिल के रेफरेंस में लोकसभा के पास पावर ज्यादा होती है और राज्यसभा के पास पावर कम होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 डेज तक के लिए ही रोक सकती है, और अगर राज्यसभा ने उस बिल को 14 डेज में पास नहीं किया देन इट इज डीम्ड टू बी पास, तो उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं एप्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इसको इस पर वर्डिक्ट दिया है। सेकंड पॉइंट ये है कि वी बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे पास आर्टिकल 19(1) ए में ये राइट है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट कौन सा है? 19(1) ए, और दिस इज द राइट टू, ये राइट है राइट टू नो, जानने का अधिकार। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे पास अधिकार है कि हम ये जाने कि किस पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने या किस पर्सन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितने पैसे दिए हैं। अब अगर हमको ये राइट नहीं पता चल रहा है देन इट इज डीम्ड टू बी द वायलेशन ऑफ राइट टू नो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट might have discussed all these issues and has given the decision verdict that will be pronounced by the honorable supreme court subsequent. Now we come to next. Kerala government moves Supreme Court against governor over pending bills. ठीक है, तो ये केरला में भी हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने तमिलनाडु में इसी सिचुएशन को पढ़ा था। तो अब हम इसके एक लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं। देखेगा कि सेंटर यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कानून बनते हैं उसमें जो प्रेसिडेंट है वो उसका पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। सिमिलरली गवर्नर जो है, गवर्नर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी बिल किसी भी हाउस से पास होकर या दोनों हाउसेस से पास होकर, देखिएगा हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट में एक हाउस तो कंफर्म है, दिस इज द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये हाउस तो सभी स्टेट में पाया जाता है। सेकंड हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सभी स्टेटों में नहीं पाया जाता। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168, ये इट इज फाउंड ओनली इन फ्यू ऑफ द केसेस, नंबर में भी 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर तो और इसका दूसरा पार्ट होता है गवर्नर, क्योंकि कोई भी बिल कानून जब ही बनता है जब उस पर गवर्नर के साइन हो जाते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 टॉक्स अबाउट इट, और पार्लियामेंट के रेफरेंस में आर्टिकल 111। तो बेसिकली आर्टिकल 111 gives power to president to sign a particular bill और 200 give power to the governor to sign a particular bill। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि गवर्नर कितने दिन में किसी बिल पर साइन करेगा। तो अब अगर गवर्नर ने उस बिल को एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए विदहोल्ड कर लिया या होल्ड कर लिया, देन उस बिल पर वो बिल कानून नहीं बनेगा एंड इट विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, नाउ इस पर इनके खिलाफ जो हमारे गवर्नर हैं केरला के, आरिफ मोहम्मद खान जी,
इनके खिलाफ ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आर्बिट्ररी मैनर में इन्होंने उसको रखा हुआ है, ठीक है, और ये उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये अपनी जो ड्यूटी है, जो लीगल ड्यूटी है इनकी, ठीक है, कौन सी, governor who failed to exercise the constitutional provisions regarding the bill presented to him as mentioned in Article 200 appeared to be of the view that granting assent or otherwise dealing with bill was a matter of interest to him in his absolute discretion to decide whether he pleases state submitted. तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या किसी बिल पर साइन करना या ना करना गवर्नर का एब्सोल्यूट राइट है या एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन है, तो आंसर होगा नो। देखिएगा, कानून में किसी भी एक इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन नहीं दिया जाता, ठीक है, तो यहाँ पर रीजनेबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ फाइल की गई है एसएलपी। अब हम थोड़ा सा समझते हैं एसएलपी को। तो बेसिकली एसएलपी जनरल रूल ये होता है कि हम किसी भी हायर कोर्ट में अपील के द्वारा जाते हैं, तो पहले लोअर कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एसएलपी जो है, एसएलपी होती है स्टेट स्पेशल, एसएलपी होती है स्पेशल लीव पेटिशन। तो जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है स्पेशल, तो स्पेशल में अपने आप में स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं किसी भी पर्सन या अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, केरला की गवर्नमेंट है, इट हैज डायरेक्टली अप्रोच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, ठीक है, ताकि उनको वो डायरेक्ट दें कि वो बिलों को ज्यादा पेंडिंग ना रखें और बिलों पर टाइमली साइन करें ताकि बिल वो बन सके, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल लीव प्रोविजंस, स्पेशल लीव पिटीशन से संबंधित जो आर्टिकल है हमारा, दिस इज 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस किक इन एज एयर क्वालिटी टर्न्स सीवियर। तो दिल्ली में फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, और ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और जो बेसल 3 और बेसल 4 के व्हीकल हैं, ठीक है, बेसल 3 पेट्रोल में और बेसल 4 डीजल में, इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करेगा तो उस पर 20,000 रुपए का फाइन लगेगा या उसका चालान लगेगा, ठीक है। अब हम इसका एक लीगल एस्पेक्ट देखते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है। ये कहता है, हमको दो राइट देता है। पहला है हमारा राइट टू लाइफ और दूसरा है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो यहाँ पर जो राइट टू लाइफ है, इससे संबंधित राइट टू एनवायरमेंट भी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अच्छे एनवायरमेंट में नहीं रहेंगे तो हमारा राइट टू लाइफ वायलेट होगा। तो इस पर एक डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, यू मे नोट डाउन द नेम, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो सभी पर्सन के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रहे। और आर्टिकल 48A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये स्टेट पर ड्यूटी इम्पोज करता है, इम्पोज ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इम्प्रूव एनवायरमेंट। स्टेट की ड्यूटी है कि वो इसको एम्पावर करे, मतलब इम्प्रूव करे इस एनवायरमेंट को। अब अगर स्टेट एनवायरमेंट को इम्प्रूव नहीं करता है तो वैसे तो ये डीपीएसपी है, 48A इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी दिए गए हैं 36 से 51 तक और 48A इसी में फॉल करता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इंडिया के केस में आर्टिकल 21 में रीड किया, जिससे क्या हुआ कि अर्लियर इट वाज ऑप्शनल फॉर द स्टेट टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट, but by way of the decision or by way of interpretation of Honorable Supreme Court, now it has become mandatory for the state to improve the environment. Now we come to this thing. Is the United Nation toothless in ending war? तो क्या जो यूनाइटेड नेशन है वो कॉम्पिटेंट नहीं है वार को रोकने के लिए? तो अब हम थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन को बारे में समझेंगे इसमें।
देखिए बेसिकली क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई हमारी 1914 में। उस समय हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी लाइक जैसे यूनाइटेड नेशन जो वार को रोक सके। इसलिए 1918 में ये वार खत्म हुई और 1920 में एक इंटरनेशनल लेवल पर बॉडी बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का मेन पर्पज ये था कि संसार में होने वाली वार को रोका जाए, ठीक है, और कोई सेकंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन सब्सिक्वेंटली फिर 1939 टू 1945 फिर एक सेकंड वर्ल्ड वार हो गई और ऐसा माना गया, क्या माना गया, कि जो लीग ऑफ नेशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी 24 अक्टूबर 1945। इसका मेन पर्पस ये था कि ये होने वाली वार को, वर्ल्ड वार को रोके और कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, ठीक है। अब ये बहुत दिन से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन हम देखते हैं, प्रेजेंटली अगर हम देखें तो अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं रसिया और यूक्रेन वार, लेकिन इसमें यूएन ने कोई अभी इंटरफेयर नहीं किया है और ना ही कोई इस तरह की डायरेक्शन दी है कि इसको रोका जाए। सिमिलरली अगर हम देखें तो अराउंड 25-26 डेज हो गए हैं हमास और इजराइल वार, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह का नहीं सुना। अब हम देखते हैं कि भाई क्या इसके पास पावर है या नहीं। तो बेसिकली जो यूएन है इसके 6 ऑर्गन्स हैं। पहला है जनरल असेंबली, ये इसकी पार्लियामेंट की तरह काम करता है। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आईसीजे। फोर्थ है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और छठा है हमारा सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है टू। क्या लिखा, ये समझ में आपको? तो ये इसकी 6 बॉडीज हैं। अब यहाँ पर सबसे पावरफुल बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल की आर्टिकल 25 के अनुसार प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश इंटरनेशनल लेवल पर पीस एस्टैब्लिश करे, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं। 15 में से 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट है। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? यूके, यूएसए, रसिया, चाइना और फ्रांस। ये 5 मेंबर और सारी पावर जो है वो इन 5 परमानेंट मेंबर के पास ही है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनमें आपस में ही बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यूएसए और चाइना का डिस्प्यूट रहता है, रशिया और यूएसए का डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। फ्रांस और यूएसए की काइंड ऑफ फ्रेंडशिप रहती है, ठीक है। तो इसलिए अभी आप देखें कि जो इजराइल वार है और ये तुम्हारा हमास वार है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि यूएसए इज सपोर्टिंग, यूएसए बीइंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज सपोर्टिंग इजराइल, ठीक है। अब अगर इस पे कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, किस पर, वार को रोकने के लिए, तो वहां पर इन सभी 5 परमानेंट मेंबरों के पास एक वीटो पावर। ये वीटो पावर, अब वीटो पावर क्या है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन भी लाया जाता है जिसके द्वारा उसको बंद कराने का कोई प्रपोजल आए, कोई रेजोल्यूशन आए वार को, तो वहां पर यूएसए वीटो लगा देगा। तो इसलिए यूएसए की वीटो पावर की वजह से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए इनमें अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। अब हम आप देखते हैं, इज इंडिया विच इज द करंट चेयर ऑफ द G20 इन अ पोजिशन टू प्ले ए मीडिएटर रोल इन द दिस वार और एंडिंग वार। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि भाई इंडिया को जो है अभी, आल्दो इंडिया G20 की वो कर रहा है, लेकिन इंडिया अभी उस पोजीशन पर नहीं है कि वो इस तरह से मीडिएशन कर सके दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में। तो बेसिकली दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में हमेशा
नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी होती है। नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि अगर वर्ल्ड के दो ब्लॉक या दो ग्रुप आपस में फाइटिंग कर रहे हैं तो इंडिया उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। नाउ एंटनी ब्लिंकन लॉयड ऑस्टिन टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग। ठीक है, तो एक तो यूएस सेक्रेटरी है एंटनी ब्लिंकन, और यूएस, एक तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, ये दोनों इंडिया आएंगे। अब ये बात करेंगे 2+2। व्हाट इज दिस 2+2 डायलॉग, इसको हम समझते हैं। बेसिकली इनके दो लोग आएंगे और हमारे इंडिया के दो लोग होंगे। पहले होंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जी और दूसरे होंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी। इस पर ये आकर जो ग्लोबली प्रॉब्लम चल रही है उस पर बात करेंगे, लाइक रशिया, लाइक हमास और इसराइल वार, और रशिया और यूक्रेन वार। ठीक है, और फिर आगे इसमें वो ये भी देखेंगे कि जो और और तरीके से कॉपरेशन दोनों कंट्री के बीच में कैसे बनाया जा सकता है। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट इज 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग का मतलब ये है कि दो लोग वो आएंगे और दो लोग हमारे देश के होंगे, ये सब मिलके बात करेंगे। Now we come to next one. Supreme Court Collegium proposes new Chief Justice for the three High Court. तो ये कॉलेजियम क्या है इसको हम समझ लेते हैं कि जितने भी हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम के द्वारा होता है। कॉलेजियम में कौन होता है, एक होता है सीजीआई और एक होते हैं 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये 5 लोग मिलके कॉलेजियम बनाते हैं और ये किसी भी जज का, एक हाई कोर्ट के जज का अगर दूसरे हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर करना है तो उसकी रिकमेंडेशन ये कॉलेजियम ही देता है। और इनके द्वारा जो दी गई रिकमेंडेशन है वो किस पर, प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 214 के अनुसार या 214 के अनुसार होता है और 217 इनके ट्रांसफर की बात करता है। अब देखिएगा, एज एप्पल स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक अलर्ट इज इन्वेस्टिगेटेड, क्लियरिटी रिमेन आउट ऑफ रीच। बेसिकली यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग जो है ये एप्पल कंपनी ने एक एलिगेशन लगाए थे कि जो हमारे देश के अपोजिशन के लीडर हैं उनके फोन टैपिंग हो रही है, किसके द्वारा, बाय है बाय द स्टेट ऑथराइज पर्सन। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी उसमें कोई प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म होती है स्नूपिंग। स्नूपिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो स्नूपिंग का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इट इज लीगली नॉट अलाउड। नाउ CBAM, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये यूरोपियन कंट्रीज ने एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक टैक्स बनाया है और ये कहता है कि अगर कोई पर्सन या कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन को ये इस तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा, ठीक है, जो कि कार्बन से बनते हैं या जिनके मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन का रोल है, तो दे आर रिक्वायर्ड टू पे सम एक्स्ट्रा टैक्सेस। ठीक है, तो ये उसको ऐसे कंट्री को कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसका विरोध किया है हमारे जो ये हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने कहा है, पीयूष गोयल जी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, ठीक है, इन्होंने कहा कि ऑटो सेक्टर ऑफ यूरोप विल बी ओवर which will be a great opportunity for countries like India to develop a very vibrant auto sector। ठीक है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो इन्होंने ये कहा कि इस तरह के अगर हम टैक्स लगाते हैं तो वो इंडिया के फेवर में नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया का जो ऑटो सेक्टर है उसके पास एक ग्लोबल एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को डेवलप करने, क्योंकि जो यूरोप के ये है ऑटो सेक्टर है वो एक लेवल पर पहुंच चुका है। तो अब इंडिया के पास ये ऑप्शन है कि वो उसको आगे बढ़े और उसको अवेल करे। Now we come to next news. So that's all for today, my dear students. I have discussed all the important news. I will come again with the next such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.